So formal good morning. Today the chapter which we are going to start, that is the tribals, the groups and the vision of a golden age. Here some introduction of a person is given here, and on the basis of that introduction, more of that person we will read in this chapter. But before we proceed, I would like to recall your syllabus of class 7. In class 7, you had studied about the tribals. आपका एक चैप्टर था ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स क्यों? That these tribals, these used to live in forest, these were the nomads who used to move from one place to another. Earlier they used to move from one place to another, but later they had started living the settled life. They had started growing the crops. They even got separated or divided in different castes, jatis, varnas. They had their own rajas. They had different tribes. They had their own rules. They had their own regulations. They did not allow the outsiders to come to their places. They had their distinct culture. But in the later stages, they even got mixed with the powerful kingdoms. जो तो पावरफुल ट्राइब्स थे या पावरफुल राजा थे, उन्होंने अपनी ट्राइब्स मेंटेन कर ली. जो वीकर थे वो लो कास्ट में कन्वर्ट हो गए, लो कास्ट ग्रुप्स में को ज्वाइन कर लिया. जो स्ट्रॉन्गर थे उन्होंने हायर कास्ट को ज्वाइन कर लिया. दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 7. Right? So on that basis only we will be studying this chapter. But again, I need to repeat कि जब हम ट्राइबल्स के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो we are talking about a history जो past में है. Whatever way of living of the tribals was there, whatever they did to earn or to have their living, or whatever their culture was there, whatever their way of leading their life was there, that is all the past. आज के टाइम पे अगर आप कहें कि आज भी ट्राइबल्स ऐसे होते हैं तो नहीं होते हैं. Rare cases are there, but अब जो ट्राइबल्स हैं they are getting educated, they are getting higher posts in the government jobs. अब पढ़ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं अपने से, they are developed now. राइट? तो जो ट्राइबल्स आपने पढ़े थे वो हिस्ट्री था. आज के ट्राइबल्स हम उसको वैसे नहीं सोच सकते हैं कि अभी क्यों वैसी है. दे आर वेरी वेरी डेवलप, एडवांस हो चुके हैं. एनी हाउ, यहाँ पर वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन नेम्ड बिरसा. ये है 1895 की बात. पर्सन नेम बिरसा. ही वॉज वेरी वेरी फेमस इन झारखंड एरिया. झारखंड एरिया में जो ट्राइबल थे, प्लेटिव रीजन था, वहां पर ये बहुत ज्यादा फेमस था. और ये माना जाता था that he is having a miraculous powers. He can cure all diseases. He can multiply the crops. Even जो बिरसा था, इसका पूरा नाम था बिरसा मुंडा. इसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था that he is a messenger of God, that God has appointed him to save the people and even to save them from the slavery of the other people. Right? जैसे ये लोग अपनी लैंग्वेज में कहते थे डिकूज. डिकूज मीन्स आउटसाइडर्स, जो इनके लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं. राइट? तो उस लैंग्वेज में हम लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, वी कैन कॉल दोस ब्रिटिशर्स द डिकूज. हम लोग वैसे जैसे वर्ड से आया है डाकू, जैसे हम कहते हैं ना, वहां से फिर डिकूज जो है वो वर्ड कन्वर्ट हो गया. तो जो आउटसाइडर्स थे उनसे फ्री करने के लिए मानता था कि मेरे को भाई गॉड ने भेजा है. So the people started believing that he is God and he can solve many of the problems. अब ये बिरसा था कौन?
He was born in a family of Mundas. Mundas क्या थे? एक ट्राइबल ग्रुप है। आप लोगों को याद होगा क्लास 7 में जो आप ट्राइब्स पढ़े थे, कितने सारे ट्राइब्स आपने मैप में मार्क किए थे? कॉन्स, भील्स, गुजर्स, रायकास, देन संथाल्स, नागास। याद है आप लोगों को? ये सब आप लोगों ने क्लास 7 में मैप में फिल किया था, राइट? तो ये जो बिरसा था, ही वॉज born in the family of tribal group of झारखंड। झारखंड में एक बहुत बड़ा प्लेटिव रीजन है जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर, राइट? और ये इतना फेमस हो गया था कि इसके जो फॉलोअर्स थे, they were, you can say, they included the other tribes also. अदरवाइज क्या होता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ये अपनी ट्राइब को लेकर बड़े पर्टिकुलर होते हैं। they don't allow the other people to mix with them, राइट? अपने ये ट्राइब्स में मिक्स नहीं होने देते। लेकिन बिरसा मुंडा इतना फेमस हो गया था कि इसके फॉलोअर्स जो थे वो बाकी ट्राइबल ट्राइब्स भी थी, जैसे कि संथाल्स हैं, ओराउंस हैं, आसपास के जितने भी एरिया के जो लोग जो अपनी लाइफ से परेशान थे, those who were not happy with the changes that were brought by the Britishers, वो लोग जो थे उन्होंने बिरसा मुंडा को फॉलो करना शुरू किया, राइट? क्या रीजन थे? रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स के कारण जो ये ट्राइबल लोग थे उनके जंगल काटे जा रहे थे। अब उनकी नाउ दे वर अनेबल टू अर्न, राइट? एंड इवन देयर रिलीजन, देयर कल्चर, एवरीथिंग वाज इन डेंजर, राइट? सो यहाँ पर जो लोग ये सोचते थे दैट द बिरसा इज अ गॉड एंड ही इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी? He said that he will free the people from the slavery of Dikus. Who were these Dikus? How they have enslaved the people? What happened to the life of the tribals under the British? कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई? ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या रीजन थे कि बिरसा जो था उसको ऐसे करना पड़ा, अपने आप को गॉड डिक्लेयर करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय, राइट? तो अगेन हम लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल करें क्लास 7 को, राइट? तो वहां पर आप देखेंगे कि क्लास 7 में हमने पढ़ा था दैट दीज ट्राइब्स दे हैड डिफरेंट कस्टम्स, रिचुअल्स, and these tribes, the rituals which were followed by these tribes, they were totally different from the Brahmins. उस समय क्या था, ब्राह्मण्स ने अपने आप को सुप्रीम सा डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो ट्राइब्स थे इन्होंने अपने कल्चर को बहुत अलग रखा, ब्राह्मण से अपने आप को सेपरेट रखा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सोसाइटी थी, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, they also got divided into different castes, राइट? इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी सोशल डिफरेंसेस आ गए, इनमें भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए। ये जो ट्राइबल लोग थे कैसे रहते थे? व्हाट वाज देयर वे ऑफ लिविंग? सो हियर आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि सारे ट्राइबल्स जो थे वो सारे एक ही काम नहीं करते थे कि सारे जो है वो हंटिंग पे निकल गए, सारे ही जो है वो हंटर गैदरर्स है, ऐसा नहीं। दीज आर डिवाइडेड इन सब पार्ट। कुछ जो थे वो कल्टीवेटर्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ एनिमल्स को पालते थे। So I'll just explain you all these things in detail. That some they followed the झूम कल्टीवेशन। आप लोगों को याद होगा आपने क्लास 7 में पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में कई एरियाज में झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। What is this shifting cultivation? I'll just explain it to you that this is done on the small patches of land. आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द कल्टीवेशन रूल्स। पहले क्या होता था, जब ये जो ट्राइबल्स होते थे सारा का सारा फॉरेस्ट इन्हीं का होता था, राइट? इन्हीं के फॉरेस्ट होते थे, कोई फॉरेस्ट रूल्स नहीं होते थे। तो व्हाट दीज पीपल यूज्ड टू डू,
कि ये पेड़ों का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको काट देते थे, जिससे कि सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक आ सके। सेकेंडली, दे यूज टू क्लियर द लैंड, जो जमीन होती थी उसे ये एक अपने ट्रेडिशनल टूल से ही साफ कर लेते थे, काट देते थे, उसके बाद आग लगा दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि वहां पर ऐश इकट्ठी हो जाती थी। अब वो जो ऐश होती थी, जो इसे राख कहते हैं, वो उस पैच पे, उस जो जगह खाली की है खेती करने के लिए, उसके ऊपर फैला दी जाती थी। इस ऐश में, इस राख में बहुत सारा पोटैश होता था, which was very good for the cultivation, or good for the crops, right? इसके बाद क्या होता था, जो सीड्स, बीज होती थी ना, उसे स्प्रेड करते थे। ऐसे नहीं जैसे हम लोग अब गमले में क्या करते हैं, हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, ये ऐसे नहीं करते थे, ये कोई प्लॉइंग नहीं करते थे, ये ऐसे ही स्प्रेड करते थे। जैसे हम लोग चिड़िया को दाना डालते हैं ना, वैसे ही ये सीड्स को स्प्रेड कर देते थे। एंड वंस द क्रॉप वॉज रेडी, क्रॉप तैयार हो गई, इन्होंने वो क्रॉप काटी, ये दूसरे पैच पे चले गए, दूसरे जमीन के टुकड़े पर चले गए, उसे भी खाली किया, वहां पर 2-4 साल खेती की, फिर तीसरे पैच पे चले गए, फिर 4-5 साल खेती की। उसके बाद क्या करते थे, ये 2-3 बार ऐसा करके, देन दे यूज्ड टू कम टू पैच नंबर 1, फील्ड नंबर 1। उस टाइम तक क्या होता था कि 10-12 साल में जो सबसे पहले फील्ड काटा हुआ था ना, जो जमीन का पीस खाली किया था, उसमें दोबारा फॉरेस्ट उग जाता था, ये फिर फॉरेस्ट क्लियर कर लेते थे, तो ऐसे शिफ्ट होते रहते थे। उससे बेनिफिट क्या होता था कि जो पेड़ इन्होंने काटे हैं, अब जब ये दूसरी जगह मूव कर गए, तो पिछले खेतों में पेड़ों को उगने का टाइम मिल जाता था। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग was very beneficial. So as mentioned that the field that was once cultivated was left fallow. एक जगह काटी, खेती की, कुछ साल खेती की, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता था। फैलो होता है जिसके ऊपर कुछ खेती नहीं की जा रही है। उससे क्या फायदा होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो खेती करने से खत्म हो गई है, उसको दोबारा वापस आने का टाइम मिल जाएगा, राइट? और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, दे वर नॉर्मली फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा होती थी। व्हाई? बिकॉज more forests were there in those areas, and the life of these tribes that was depending on these forests. ये जो ट्राइबल लोग थे, ये बड़े आराम से फॉरेस्ट में आ जा सकते थे, फ्रीली घूमते थे, फ्रीली अपनी खेती करते थे, राइट? एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर देम टू प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जैसे मैंने कहा कि जरूर सारे जने एक ही काम नहीं करते थे, लाइक सम वर हैविंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। अब ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वो कौन से लोग थे? These people, they lived in groups, they hunted the animals, जानवरों को मारते थे, and they also used to gather the forest produce. क्या क्या गैदर करते थे? Raisins, gum, right? Medicinal plants, wood for fuel, fruits and roots to eat, right? इसमें मेन क्या थे? साल एंड महुआ। साल जो है ये एक तरह का पेड़ है, और महुआ क्या है? दिस इज अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज्ड टू मेक अल्कोहल। महुआ जो है ये ऐसा एक जिसे कि पेड़ है या फ्लावर है जिसको एज अ अल्कोहल यूज किया जाता है, राइट? इसके अलावा श्रब्स, हर्ब्स, जैसे मैंने बताया मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। और ये क्या करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे और उन्हें आसपास की मार्केट में बेच देते थे, राइट?
Besides this, they used to collect the palash flowers. पलाश एक तरह का फूल होता है जिससे क्या होता है, कपड़े डाई किए जाते हैं, कपड़े जो हैं वो डाई किए जाते हैं। तो ये ट्राइबल लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती थी। ये they used to gather that palash and they used to sell it to the local traders, और उसके बदले में ये क्रॉप्स या खाने पीने की चीजें ले लेते, राइट। दे यूज्ड टू एक्सचेंज द गुड्स। आप लोगों को याद होगा क्लास 7 में हमने पढ़ा था दैट दे वर नॉमेड्स, और ये कई बार लाइक एनिमल प्रोड्यूस जो है, घी है या मिल्क है, वो ट्रेडर्स को दे देते थे और उनसे वो दे यूज्ड टू टेक द से wheat and rice and oil from the traders, right? So as mentioned कि they used to have a trade with the local people. अब कुछ ऐसे थे जो खेती भी नहीं करते थे या गैदरिंग या हंटिंग नहीं करते थे. They worked as a laborers. They worked as a laborers carrying loads or building roads, while some worked in the fields of rich farmers and peasants. Right? तो जब ये कई बार जैसे कोई क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई है, तो ऐसे में ये जो बेचारे थे इनको लेबर्स बनना पड़ता था, राइट. लेकिन अब जब ये कुछ लोग लेबर्स बन गए थे तो इनको जो लेबर्स थे इनको बड़ा ही लोली देखा जाता था कि दीज पीपल आर वेरी लो, राइट. इस ढंग से इनको देखा जाता था एंड दे वर नॉट कैन से सीन एज अ डिग्निफाइड पीपल. जो लेबर की तरह काम करते थे वो एक डिग्निफाइड लोगों की तरह उन्हें नहीं देखा जाता था, राइट. और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तो दे हैड टू डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स और द मनी लैंडर्स. कई बार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें मनी लैंडर्स या जो लोग उधार देते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, राइट. अब जब ये उधार लेते थे, उधार लेने के बाद इन्हें कुछ बहुत ज्यादा पैसा वापस भी करना पड़ता था. उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो लोग थे ये पुअर होते चले गए, बिकॉज दे हैड टू बोरो द मनी एंड टू रिटर्न द मनी बैक दे अगेन हैड टू बोरो मोर मनी. दे वर ऑलवेज इन डेब्ट, हमेशा उधार में ही रहते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये पुअर होते चले गए, बहुत गरीब होते चले गए. कुछ लोग क्या थे, दे हर्डेड एनिमल्स. कौन से लोग थे आप लोगों को फिर मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ. व्हेन यू पीपल वर इन क्लास 7, वहां पर आपने जो ट्राइब्स देखे थे, रायकास और गुज्जर्स, गद्दीज, नागाज, गॉन्ड्स, हील्स, राइट. तो ये कौन है, ये थे वो ट्राइबल्स जो एनिमल्स पालते थे. दे हर्डेड एनिमल्स. दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे गुज्जर्स हैं, आप लोग को याद है कि गुज्जर्स तो यहाँ पे जैसे फगवाड़ा, जलंधर, लुधियाना यहाँ पर भी रहते हैं, राइट. और ये लोग क्या करते हैं, दे रियर द एनिमल्स लाइक गोट एंड काउ एंड दे सेल द मिल्क. दे सेल द मिल्क टू द पीपल. इसमें और भी कुछ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है गद्दीज, कश्मीर में है बकरवाल्स, राइट. आंध्र प्रदेश में है स्लबादीज. तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो एनिमल्स पालते हैं एंड दे सेल द एनिमल प्रोडक्ट्स. ये लोग एनिमल प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं. अब कुछ कैसे थे, कुछ ऐसे थे दोज हु हैड टेकन द सेटल्ड कल्टीवेशन, जो एक जगह रुक गए, एक जगह टिक गए. अब ये घूमते नहीं थे, इन्होंने प्लॉइंग शुरू की, उन्होंने वहां पर घर बना लिए छोटे छोटे, राइट. वहां पर पक्की खेती करनी शुरू कर दी, राइट. और इन्होंने दे हैड द राइट ओवर द लैंड. धीरे धीरे ये पावरफुल होते चले गए, इन्होंने अपने ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, राइट. और ये थोड़े टाइम बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि इन्होंने खुद खेती करने की जगह जो जमीनें थी वो रेंट पे देनी शुरू कर दी.
अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऐसे सेटल्ड कम्युनिटीज उनको अच्छी लगने लगी, और जो घूमते थे यहाँ से वहां, वो इन्हें अच्छे नहीं लगते थे, वो इन्हें अनसिविलाइज लगते थे, और जो सेटल्ड थे वो इनको सिविलाइज लगते थे। अब हाउ these Britishers had affected the lives of tribes, that we will read, we will go through in your tomorrow's class.